نشتر اسپتال اور سی ٹی ڈی کے جعلی مقابلوں اور لاپتہ ٹیچر رفیق اومان اور دیگر لاپتہ افراد کی عدم بازیابی کے خلاف بلوچ یکجہتی کمیٹی کیچ کا تربت میں احتجاجی ریلی مظاہرہ۔ آج اکتوبر کی 22 تاریخ ہے، دن ہفتہ، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شپوش بات۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کیچ کے زیر اہتمام سانحہ نشتر اسپتال ملتان اور سی ٹی ڈی کے ہاتھوں مسلسل بلوچ نوجوانوں کی جعلی مقابلوں میں مارنے اور لاپتہ ٹیچر رفیق اومان اور دیگر لاپتہ افراد کی عدم بازیابی کے خلاف ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس میں خواتین و بچوں سمیت کثیر تعداد میں عوام نے شرکت کی اور سی ٹی ڈی کے ہاتھوں بلوچ نسل کشی اور سانحہ نشتر اسپتال میں لاشوں کی بے حرمتی اور انہیں بنا کسی شناخت کے مسئلے کو منظر عام سے غائب کرنے کی سازشوں پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا اور ان واقعات میں ملوث تمام کرداروں کو بے نقاب کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ احتجاجی ریلی عطاشات ڈگری کالج سے شروع ہو کر مظاہرے کی شکل میں شہید فدا احمد چوک تک پہنچی، جہاں مظاہرین نے بیٹھ کر ان واقعات پر شدید احتجاج کیا۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ ایک جانب بلوچستان میں نام نہاد امن و امان کی پرچار کی جاتی ہے، دوسری جانب وفاق میں ایک نام نہاد جمہوری حکومت کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جس میں بلوچستان کے قوم پرست بھی شامل ہیں، جبکہ پاکستان میں مقتدرہ حلقے سیاست میں نیوٹرل ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ پاکستان میں ہر چیز بدل رہی ہے، لیکن بلوچستان میں جاری نسل کشی میں کوئی تبدیلی دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے، اور سی ٹی ڈی کے بننے کے بعد سے بلوچستان میں مارو اور پھینکو کی پالیسی کو باقاعدہ مین اسٹریم کر دیا گیا ہے اور اس کو قانونی طریقے سے انجام دیا جا رہا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ بلوچستان میں جاری نسل کشی کا تعلق کسی ایک ادارے یا فوج کی پالیسی نہیں، بلکہ پاکستان کے تمام ادارے بطور ریاست اس میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ سب کو اس بات کا علم ہے کہ سی ٹی ڈی جعلی مقابلوں میں لاپتہ افراد کو قتل کر رہی ہے، لیکن عدلیہ سے لے کر صحافی حضرات تک سب کے لبوں پر مہر لگی ہوئی ہے اور کوئی بھی ان جرائم پر بات کرنے کو تیار نہیں، جبکہ صوبائی و نام نہاد وفاقی حکومت ان قتل و غارت کو بلوچستان کے حالات سے جوڑ کر آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، جو کسی المیہ سے کم نہیں ہے۔ آج بلوچستان میں جو نسل کشی ہو رہی ہے وہ باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت جاری ہے اور اس کو گزرتے وقت کے ساتھ وسعت دیا جا رہا ہے۔ زیارت میں 9 لاپتہ افراد کا قتل ہو یا 50 دنوں کے احتجاج اور وفاقی وزیر داخلہ کی یقین دہانی کے باوجود مہینے کے اندر ہی مزید لاپتہ افراد کا جعلی مقابلوں میں قتل ہو، یہ سب ثابت کر رہے ہیں کہ بلوچستان کو ایک سازش کے تحت مزید قتل و غارت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ خاران اور مستونگ میں 9 لاپتہ افراد قتل کیے گئے اور ریاستی ادارے انہیں عسکریت پسند افراد قرار دیتے رہے، جبکہ مقرر نے سانحہ نشتر اسپتال ملتان پر بھی تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جہاں ریاست کی ذمہ داری ہر ایک شہری کی حفاظت اور اس کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، وہیں 500 لاشوں پر اتنی خاموشی، میڈیا کا اس کو نظر انداز کرنا، سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں کی خاموشی نے کئی خدشات جنم دیے ہیں۔ پنجاب میں جب کوئی کتا مرتا ہے تو اس پر بھی کئی دنوں تک واویلا کیا جاتا ہے، لیکن 500 لاشوں پر مکمل خاموشی ہے، جو ہمارے تحفظات کو مزید تقویت دے رہی ہے کہ یہ لاپتہ افراد کی لاشیں ہو سکتی ہیں، اس لیے ان کا ڈی این اے ٹیسٹ کرایا جائے۔ آخر میں مقررین نے ریاستی اداروں سے مطالبہ کیا کہ بلوچستان گزشتہ 2 دہائیوں سے آگ و خون کی چکی میں پس رہی ہے، اب مزید اس قتل و غارت کو بند ہونا چاہیے تاکہ بلوچستان کے عوام سکھ کا سانس لے سکیں۔ اتل میں احتجاج کرنے والے 6 طلباء کے خلاف ایف آئی آر درج۔ لسبیلا یونیورسٹی آف ایگریکلچر اینڈ واٹر میرین سائنسز اتل کی انتظامیہ کی جانب سے گزشتہ روز طلباء و طالبات کا اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج کرنے پر پولیس تھانہ اتل میں 6 طلباء کے خلاف ایف آئی آر درج کرا دی۔ اتل پولیس کے مطابق لسبیلا یونیورسٹی آف ایگریکلچر اینڈ واٹر میرین سائنسز اتل کی رجسٹرار ڈاکٹر احمد نواز کوسا کی مدیت میں گزشتہ روز طلباء و طالبات کی جانب سے اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج کرنے پر پولیس تھانہ اتل میں 6 طلباء کے خلاف یونیورسٹی میں امن و امان کی صورتحال خراب کرنے، ہرمن بلاک کے سامنے کھڑے ہو کر نعرے بازی، سیکورٹی گارڈ کو زخمی کرنے، عمارت کو نقصان پہنچانے کے گیٹ توڑنے کے خلاف
बाजुर्म 147, 149, 427, 186, 506 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत FIR दर्ज करा दी। डिप्टी कमिश्नर कीच का तुर्बत से गिरफ्तार तालिब इल्म का तखरीबी सरगर्मियों में मुलव्वस होने का दावा। तुर्बत यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हयात बलोच को रवा महीने लापता करने की इतलात हैं। डिप्टी कमिश्नर कीच मेजर बशीर बड़ेच ने तुर्बत में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि CTD ने तुर्बत से एक अहम मुजरिम मोहम्मद हयात वल्द मोहम्मद असलम को हिरासत में लिया है, जो दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्वस रहा है। उन्होंने कहा है कि वो शहर में एक और कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश में था कि उसे बरवक्त गिरफ्तार किया गया, उसे जल्द अदालत में पेश किया जाएगा। ताहम डिप्टी कमिश्नर कीच ने गिरफ्तार तालिब इल्म के बारे में ये नहीं बताया कि उसे कब और कहाँ से गिरफ़्तार किया गया है। वाज़ेह है कि तुर्बत यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म मोहम्मद हयात को गुज़श्ता हफ़्ता 13 अक्टूबर को दीगर चंद नौजवानों के हमरा हिरासत में लेने के बाद लापता करने की इतलात हैं। बलोच तलबा रियासती जबर का शिकार हैं, जबरी गुमशुदगियाँ और कत्लेआम बंद किया जाए। BSO बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के मरकज़ी तर्जुमान ने बयान जारी करते हुए कहा है कि मुल्क के बेशतर तालीमी अदारों में ज़ेर तालीम बलोच तलबा जारी रियासती जबर का शिकार हैं। उन्होंने कहा है कि गुज़श्ता दिनों बलूचिस्तान में CTD के हाथों लापता अफराद का जाली मुकाबलों में BSO पजार के रुकन ताबिश वसीम समेत दीगर लापता अफराद का कत्ल, तुर्बत यूनिवर्सिटी समेत ज़िला कीच से बलोच तलबा का अगवा और पंजाब यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों को रिवायती लिबास पहनने की पादाश में ज़दक़ोब व तशद्दुद लसबेला यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जानिब से एहतजाज करने पर FIR का इंदराज सवालिया निशान है। तर्जुमान ने मज़ीद कहा है कि बलोच तलबा रोज़े अव्वल से अपनी कौमी शनाख्त की वजह से हमेशा मज़ालिम की ज़द में रहे हैं, लेकिन मौजूदा जबर की लहर और इसका पैमाना अपनी नोयत में मुख्तलिफ और इंतहाई ज़ालिमाना है। आए रोज़ तलबा की जबरी गुमशुदगी और फेक इनकाउंटर में नौजवानों के कत्लेआम से बलूचिस्तान में खौफ का माहौल पैदा किया गया है, जिसकी वजह से बलूचिस्तान के नौजवान तालीम हासिल करने में झिझक महसूस कर रहे हैं। एक तरफ बलूचिस्तान में इंसानी बहरान में इजाफ़ा होता जा रहा है, तो दूसरी जानिब मुल्की आइनी अदारे और इंसानी हुकूक़ के आलमी तंजीमें खामोश तमाशाई बनी हुई हैं, जिससे पूरी दुनिया में बसने वाले मज़लूम अवाम की उम्मीदें इंसानी हुकूक़ के अदारों से उठ रही हैं। दुनिया में अमन व अमान, मज़लूम कौमियतों की शनाख्त मसा करने और इंसानियत के खातिर इंसानी हुकूक़ के अदारों को सामने आकर किरदार अदा करना होगा। जलमक्सी में फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। लेविस्ताना कोटमक्सी के इलाके में फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शनाख्त सिकंदर के नाम से हुई है। कत्ल की वजह पुरानी दुश्मनी का शाखसाना बताया जा रहा है। मज़ीद तहकीकात झलमक्सी लेवीज़ फोर्स कर रही है। क्वेटा में फोती कोटे पर मुलाजमतों के लिए एहतजाज करने वाले 100 से ज़ायद मुजाहिरीन गिरफ़्तार। क्वेटा के GPO चौक पर फोत हो जाने वाले मुलाजिमीन के लवाहिकीन की मुलाजमतों के कोटे के लिए एहतजाज करने वाले 100 से ज़ायद मुजाहिरीन को पुलिस ने गिरफ़्तार करके मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल कर दिया। लवाहिकीन ग्रैंड अलायंस के जानिब से मुतालबात तस्लीम न होने पर क्वेटा प्रेस क्लब के सामने से एहतजाजी रैली निकाली गई। पुलिस के रोकने पर शुरका ने GPO चौक पर धरना दे दिया। पुलिस ने धरने पर बैठे मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 100 से ज़ायद मुजाहिरीन को गिरफ़्तार कर लिया। फोती कोटा के लिए एहतजाज करने वाले गिरफ़्तार मुजाहिरीन को क्वेटा के मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल कर दिया गया। बलूचिस्तान में सैलाब से ज़राअत को 3 खरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ। ज़मींदार एक्शन कमेटी ज़मींदार एक्शन कमेटी बलूचिस्तान के चेयरमैन और रुकन सूबाई असम्बली मलिक नसीर अहमद शाहवानी, जनरल सेक्रेटरी आजी अब्दुर्रहमान बाज़ई ने अपने जारी करदा बयान में कहा है कि किसको काम के साथ मुलाकात हुई, जिसमें फ़ैसला हुआ कि किसको ज़राई फीडर्स पर बिजली 30 तारीख तक मुनक़ता नहीं करेगी। उन्होंने कहा है कि ज़मींदार एक्शन कमेटी के एहतजाज और चार्टर ऑफ डिमांड्स के बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान से एक्शन कमेटी के नुमाइंदों ने मुलाकात की, जिन्हें तमाम तर मसाइल से आगाह किया गया था और बताया था कि हालिया बारिश और सैलाब से सूबे को ज़राअत के शोबे में 3 खरब से ज़ायद का नुकसान हुआ है। इस मौके पर किसानों को बीजों और खाद पर सब्सिडी फराहम करना ज़रूरी है। नुकसानात के अजाले के सर्वे में ज़मींदारों का नुमाइंदा भी शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने वफ़द को यकीन दहानी कराई कि इमदाद या बहाली के मामले पर किसी के साथ भी इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाएगा और ज़मींदारों के नुकसानात का अजाला किया जाएगा। अब्दुल कुदूस बिजंजो ने कहा है कि खाद और ज़रई बीजों पर किसानों को सब्सिडी फराहम करेंगे। ज़रई कर्ज़े माफ़ करने पर वफाक से बातचीत की जाएगी।
पंजाब में पसमानदा बलूचिस्तान के तलबा के साथ नाइंसाफ़ी का ख़ात्मा किया जाए। बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और मेंबर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान अली अहमद काकड़ ने कहा है कि इस वक्त पूरे बलूचिस्तान के सैकड़ों तलबा पंजाब में स्कॉलरशिप पर ज़ेर तालीम हैं, मगर बदकिस्मती से पिछले 1-2 अदवार में बलूचिस्तान के तलबा की स्कॉलरशिप के साथ पंजाब हुकूमत ने उनके मज़ामीन को भी स्कॉलरशिप से निकाल दिया है, जो बलूचिस्तान जैसे पसमानदा सूबे के तलबा के साथ नाइंसाफ़ी और ज़्यादती है, जिस पर तलबा सराफा एहतजाज हैं। इन ख़यालात का इजहार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। अली अहमद काकड़ ने मज़ीद कहा है कि पंजाब में एक तंजीम मुनज़्ज़म तरीके से बलूचिस्तान के तलबा को हरासा करती है, लेकिन पंजाब व वफाकी हुकूमत और पंजाब पुलिस इस पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। पहली बलूच खातून गुलकारा बतौर एम्बेसडर आलमी सतह पर जलवागर। गुलकारा एवा बी स्पॉटिफाई के इक्वल पाकिस्तान की अक्टूबर की एम्बेसडर के तौर पर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर के डिजिटल बिलबोर्ड पर जलवागर हुई हैं। उनका गीत मुख्तसर बातें स्पॉटिफाई प्रोग्राम का हिस्सा बना है और इक्वल की मकामी और आलमी प्ले लिस्ट में शामिल है। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली एवा बलूच अपने कलमी नाम एवा बी से जानी जाती हैं, जिन्होंने म्यूज़िक इंडस्ट्री में ऊपर तले हलचल मचाई हुई है। स्पॉटिफाई पर उनके माहाना सामीन की तादाद तकरीबन 4 लाख तक पहुँच चुकी है, जबकि उनके गीत कनायारी को अब तक 1 करोड़ से ज़ायद बार स्ट्रीम किया जा चुका है। आलमी सतह पर अजीम गुलकार एमिनेम और क्वीन लतीफ़ा से तहरीक पाकर एवा बी ने साल 2014 में अपने म्यूज़िक कैरियर का आगाज़ किया। उन्होंने इब्तदाई तौर पर गीतों के बोल लिखकर उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से शुरुआत की, जहां उन्होंने लोगों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराई और उनके परस्तारों की तादाद में इजाफा होने लगा। उन्होंने एक तवील सफ़र तय किया है, जिसके दौरान उन्होंने बड़े गुलकारों जैसे अली गोलपीर मोहम्मद और अनस बलोच के साथ मिलकर काम किया है। उनका गीत रोज़ी मिस मार्वल टीवी सीरीज़ की पहली किस्त के अख्तिताम का हिस्सा बनने का एजाज़ रखता है। एवा बी ने रवां माह एम्बेसडर इक्वल पाकिस्तान बनने पर इज़हार ख्याल करते हुए कहा है कि मैं स्पॉटिफाई के इक्वल प्रोग्राम का हिस्सा बनने पर नहायत खुश हूँ। इस तरह के इक़दामात न सिर्फ इंतहाई अहम हैं, बल्कि ये वक्त की अशद ज़रूरत है। पहली बापर्दा खातून गुलकारा एवा बी को बतौर आर्टिस्ट पर्दे को अपनी पहचान बनाने पर फ़ख्र है। उनका रिवायती घराने से ताल्लुक़ है। वो कराची के इलाके लियारी में पली बढ़ी हैं। इस इलाके के हिप हॉप ताकतवर बॉक्सर्स और फुटबॉलर्स तैयार करने के तौर पर पहचान बढ़ रही है। इन हालात में एवा बी ने नौजवान नस्ल बिलखुसूस ख़वातीन के लिए शानदार मिसाल कायम की है कि अगर आप हिम्मत करें, मेहनत से काम लें और साबित कदम रहे तो कोई आपको रोक नहीं सकता। दिन भर की अहम खबरों और आलात आज़रा पर मुश्तमिल बलोचिस्तान अफेयर्स का रेडियो न्यूज़ सरशप अहवाल, जिसको आप अर्शब बलोचिस्तान वक्त के मुताबिक रात 10 बजे बलोचिस्तान अफेयर्स के यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पर सुन सकते हैं। इसके अलावा आप एप्पल, गूगल और दीगर पॉडकास्ट पेज पर भी हमारे बलोची और उर्दू न्यूज़ के साथ साथ दीगर पॉडकास्ट मुफ्त सुन सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप +44 7459 170947 पर सवालात और तजावीज़ भी भेज सकते हैं। आलमी और इलाकाई ख़बरें। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के इजलास से साबिक सदर को ज़बरदस्ती निकाल दिया गया। चीन के साबिक सदर हो जंताओ कम्युनिस्ट पार्टी के सालाना इजलास में शरीक थे। वो चीन के मौजूदा सदर शी जिनपिंग के साथ वाली नशिस्त पर बैठे हुए थे। इस दौरान कुछ लोग आए और साबिक चीनी सदर को उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बाहर ले गए। चीनी सदर शी जिनपिंग खामोशी से ये सब देखते रहे। इस वाक़े के वक्त हाल में कम्युनिस्ट पार्टी के 2000 अरकान मौजूद थे। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के इजलास में आइन में ऐसी तरामीम मंजूर कर ली गई हैं जिनसे सदर शी जिनपिंग की तीसरी मुद्दत के लिए सदर मुंतखब होने की राह हमवार हो गई है। कम्युनिस्ट पार्टी के इजलास के इख्तितामी रोज़ दारुल हुकूमत बीजिंग में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इक़दामात किए गए थे। दुबई एयरपोर्ट पर कस्टम की कार्रवाई, 12.5 किलो मंशियात ज़ब्त। इमाराती कस्टम हुकाम ने अफ्रीकी मुल्क से आने वाले मुसाफिर से 12.5 किलोग्राम मंशियात बरामद कर ली। दुबई एयरपोर्ट पर मशकूक सामान की तलाशी के दौरान
مختلف بیگوں کے اندر چرس کا انکشاف ہوا۔ حکام کے مطابق چرس کو بڑی مہارت کے ساتھ بیگ کے استر میں سلائی کر کے چھپایا گیا تھا۔ واضح رہے غیر قانونی اشیاء کو روکنے کے لیے دبئی کسٹم جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کرتی ہے۔ رواں سال کے دوران کسٹم حکام نے 5000 کامیاب کارروائیاں کر کے ممنوع اشیاء قبضے میں لے لیں۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بولیٹن کو آپ تک پہنچایا ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر تکمبر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب و اشباط۔